morning class. We are going through chapter 8 from Hornbill, and the title of the chapter is Silk Road. Children, this chapter is written by Nick Middleton, and in this chapter the author describes his adventurous journey to Mount Kailash. In the previous lectures we have read that the author faced a lot of difficulties and troubles on his way to Mount Kailash, and he struggled a lot. His friend Daniel and his driver Satan were with him, with the author. So in the previous lecture we have read that when the author came to Hor is the name of a place, so his friend Daniel left him. He went from there to Lhasa, finding a ride in the truck. Now the author and his driver Satan were there. Now we are going to start from the last para of page number 77. Now see the book. Hor was a grim, miserable place. In the coming paragraph, the author tells us about Hor. He tells us his experience at Hor. तो Hor was a grim, miserable place. Hor एक गंभीर और miserable place था. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks, liberally scattered with years of accumulated refuse. So there was no vegetation at all. There were no trees and plants at all. वहाँ पर बिल्कुल वनस्पति नहीं थी, केवल डस्ट एंड रॉक्स, केवल धूल और चट्टानें थी. ऐसा लगता था liberally scattered with years of accumulated refuse, और ऐसा लगता था मानो कई वर्षों से एकत्रित कूड़ा कचरा वहां पर हो, रिफ्यूज वहां पर हो. Which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water. जो दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि ये जो टाउन था वो लेक मानसरोवर के किनारे बसा हुआ था. मानसरोवर झील के किनारे बसा हुआ था, जो तिब्बत का सबसे संवेदनशील जल का फैलाव है. This town Hor was located by the side of Lake Mansarovar, and Lake Mansarovar is considered the Tibet's most venerated stretch of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as a source of 4 great Indian rivers. अब देखिए ऑथर हमें ये भी बताता है कि जो हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, जो हिंदू प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट जो विचारधारा है, उसके अनुसार मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, जो लेक मानसरोवर है 4 महान भारतीय नदियों का एक सोर्स माना जाता है. एंड दीज 4 रिवर्स आर द इंडस, द गंगीज, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र. और ये जो 4 नदियां हैं वो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र. एक्चुअली
Only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. लेकिन वास्तव में सतलज ही इस झील से निकलती है, लेकिन जो अन्य नदियां हैं उनका उद्गम कैलाश पर्वत की चोटियों से होता है. मीनिंग thereby the headwaters of the other rivers rise nearby on the flanks of Mount Kailash. तो we were within striking distance of the great mountain. हम इस महान पर्वत से महत्वपूर्ण दूरी पर आ गए थे. And I was eager to forge ahead. और मैं आगे बढ़ने के लिए बड़ा उत्सुक था. The author was very much eager to go ahead so that he would be able to reach Mount Kailash. But I had to wait. लेकिन मुझे वेट करना पड़ा. Satan told me to go and drink some tea in horse only cafe, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. जैसा कि सेतन ने मुझसे कहा था कि मैं होर के एकमात्र कैफे में जाकर चाय पीऊँ. एंड द कैफे वाज मीन्स लुकिंग जस्ट लाइक द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन. और जो कैफे था वो उस टाउन की अदर बिल्डिंग्स के समान दिखाई दे रहा था. वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज. जो कि बैडली पेंटेड कंक्रीट से बनी हुई थी, जिसमें 3 ब्रोकन विंडोज थी. द कैफे हैड 3 ब्रोकन विंडोज. तो देखिए ऑथर कहता है द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपेंसेट फॉर द ट्राउट. अब देखिए उनमें से ब्रोकन विंडोज में से एक में से जब उसने लेक का नज़ारा देखा, लेक का जो सीन देखा, तो कहता है उसे देखकर उसे थोड़ा कंपेंसेशन मिला, सांत्वना मिली. He saw the good view of the lake through one of the broken windows of the cafe, and he felt himself somewhat relieved and comfortable, looking at the good view of the lake. Again the author tells us, I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. तो देखिए ऑथर कहता है कि he was served tea by a Chinese youth who was wearing military uniform. कहता है एक चाइनीज यूथ जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए था, उसने मुझे चाय दी, चाय सर्व की, जो कि टेबल साफ करने के लिए जो कपड़ा लेकर आया वो गंदा था और ग्रीस लगा हुआ था उस पर. और चाय सर्व करने से पहले उसने मेरी टेबल साफ की, टेबल पर ग्रीस लगा दिया और तब उसने एक गिलास और थर्मस ऑफ टी मेरे सामने रख दी. Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Kailash. Half an hour later, after half an hour, Satan again came and joined me and relieved me from my solitary confinement. ऑथर कहता है कि आधे घंटे के बाद सेतन आया और उसने मुझे एकांतवास से छुटकारा दिलाया. And we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. और हम बहुत चट्टानों और कूड़े करकट को पार करते हुए वेस्ट डायरेक्शन में टाउन से बाहर निकलकर माउंट कैलाश की ओर चल पड़े.
Come to the next paragraph. So the author tells us that my experience in horror came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. कहता है the author had already read a lot about the experience of other travelers. देखिए वहाँ आने से पहले, माउंट कैलाश की यात्रा करने से पहले ऑथर बहुत सारे यात्रियों के अनुभवों को पढ़ चुका था। तो लेकिन ऑथर कहता है कि जो उसका अनुभव था होर का, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर ही हैड रेड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर ट्रेवलर्स। कहता है मेरा होर का अनुभव, जैसा कि मैंने यात्रियों ने मानसरोवर के वर्णन को पढ़ा था, उससे बिल्कुल अलग था। दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। एकाई कावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. अब देखे बताता है कि एक जापानीज मॉन्क था जिसका नाम एकाई कावागुची था। तो ही केम देयर इन द ईयर 1900, वो वहाँ पर सन 1900 में आया था। एंड ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द सैंक्टिटी, पायसनेस एंड सेक्रेडनेस ऑफ द लेक, जो कि उस झील की पवित्रता को देखकर, वो झील की पवित्रता को देखकर, सेक्रेडनेस को देखकर इतना प्रभावित हुआ दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि वो फूट कर रोने लगी। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कहता है 2 वर्षों के बाद, द हेलोड वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडन, ए स्वीड हु वाज नॉट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। और ऑथर कहता है कि 2 वर्ष के बाद इसी साफ जल का प्रभाव एक स्वीडिश नागरिक स्वेन हेडन पर पड़ा। यह वही था जो भावुकता की सीमा तक नहीं पहुंचा। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज डार्क बाई द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन, एंड आफ्टर 10:30 PM we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night. अब देखिए the author tells, कहता है जब हम फिर से चले तो अंधेरा हो गया। When we left finally from there, there was dark, and after 10:30 PM we drew up outside a guest house in Darchen. और कहता है 10:30 PM के बाद, रात्रि 10:30 बजे के बाद हम दार्चन के गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हुए थे और हमें अगली ट्रबल्ड नाइट बितानी थी, कष्टों से बड़ी रात्रि व्यतीत करनी थी। दार्चन इज द नेम ऑफ अनदर प्लेस वेयर दे रीच्ड। Kicking around in the open air rubbish pump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अब देखिए कि when the author came to Hor, he was suffering from cold, and again when he came to Darchen, he again started feeling a kind of cold, and tells us that his herbal tea could not do more than it. कहता है कि जब वो होर आया तभी से जुकाम उसे हुआ, और दार्चन आते आते उसका जुकाम बढ़ गया, और कहता है जो कि उसकी हर्बल टी से दूर नहीं हुआ था। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. कहता है उसका जो एक नॉस्ट्रिल था वो बंद हो चुका था, नाक का जो एक नथुना था वो बंद हो गया था, और
जो दूसरा नॉस्ट्रिल था, तो ही वॉज नॉट श्योर दैट द अदर नॉस्ट्रिल वुड प्रोवाइड हिम विद सफिशिएंट ऑक्सीजन एज द ऑथर वाज एट द ग्रेट हाइट। और कहता है जो दूसरा नॉस्ट्रिल था मुझे विश्वास नहीं था कि वो मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन देगा, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर थे। एंड चिल्ड्रन, व्हेन some person is at a great height, oxygen problem is natural. My watch told me I was at 4,760 meters। वो कहता है मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि हम 4,760 मीटर्स की हाइट पर थे। इट वाज नॉट मच हायर देन राबू, हालांकि ये हाइट राबू से ज़्यादा नहीं थी। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, और राबू में भी मैं ऑक्सीजन की कमी के लिए कई बार हांफता रहा। बट आई हैड ग्रोन एक्स्टम्ड टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस बाई नाउ, लेकिन अब मैं रात्रि संबंधी जो डिस्टर्बेंसेस थे उनका अभ्यस्त हो चुका था। नाउ द ऑथर टेल्स अस दैट ही हैज बीन एक्स्टम्ड to these nocturnal disturbances and troubles. Nocturnal stands for concerning to night, but they still scared me। लेकिन ऑथर कहता है कि अभी भी मुझे उनसे डर लगता है। ओके स्टूडेंट्स, so students, that's all in this lecture. We shall go through the next lecture in the next video. Okay, thank you.